السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے نظام آباد ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک عوامی خطاب پروگرام کا انعقاد کیا۔ شکایت کنندگان کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ حکام کو قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی گئی۔ عوامی خطاب کے پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع مختلف حصوں سے شکایت کنندگان سے درخواستیں موصول ہوئیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ اسٹیشنوں کے SI اور CI سے فون پر بات کی گئی اور مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے کہا کہ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد سے کام کر رہا کہ لوگ رضاکارانہ طور پر بغیر کسی خوف کے، کسی تیسرے فریق کی شمولیت کے بغیر اور اپنے مسائل کو قانون کے مطابق حل کریں، پولیس کو لوگوں کے قریب لا کر امن و سلامتی کو برقرار رکھیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ طبی پالیسی کے مطابق عوام کو علاج اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار اقلیتی کمیشن کے چیئرمین طارق انصاری نے نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل و میڈیکل کالج میں جائزہ اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات انتہائی خوش آئند ہے کہ ہماری ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے زیر قیادت تلنگانہ حکومت اور وزیر طب و صحت دامودر راج نرسمہا ریڈی عوام کو خاطر خواہ طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرکاری دواخانے کو تمام تر انفراسٹرکچر سے لیس کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے مریضوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت مساویانہ طور پر طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ ریاست تلنگانہ کے شہری صحت مند زندگی گزار سکیں اور ہماری ریاست ملک میں ایک صحت مند ریاست کے طور پر ابھر سکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے AIMIM پارٹی کارپوریٹر محمد نصیر الدین ہارون فرحان اور امیر الدین اور مجلسی پارٹی کارکنوں کے ساتھ بالکا پور اور ٹولی چوکی اسکول، ہاکی گراؤنڈ اور ندیم کالونی، شاہ حاتم تالاب، گولکنڈہ، موتی دروازہ، افسر کالونی، احمد کالونی، بغداد کالونی، لنگر ہاؤس پارک اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دورے میں GHMC EE ڈپٹی EE AE SNDP کے عہدیدار اور کام کے ذمہ دار ٹھیکیدار ٹیم نے بھی شرکت کی۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے نالا اوور فلو ہو گیا جس سے بارش کا پانی آس پاس کی رہائشی گلیوں میں داخل ہو رہا جبکہ بہاؤ کم ہو گیا۔ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت۔ معائنے کے دوران عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ فوری کام شروع کریں بشمول بیڈ کی متوازن سطح کی تعمیر اور آؤٹ لیٹ کے قریب اہم بلاکیج پوائنٹس پر سائڈ والز کو مضبوط کرنا۔ ٹھیکیدار کو واضح طور پر ہدایت کی گئی کہ وہ وسائل کو متحرک کرے اور بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے بلا تاخیر کام شروع کرے۔ مجلس کی قیادت دیرینہ نکاسی کے مسائل کو حل کرنے اور کاروان حلقے کے مکینوں کو مستقبل میں پانی جمع ہونے کے مسائل سے بچانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے اثر کے باعث آئندہ 3 دنوں تک تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پہلے ہی ریاستوں کے کئی اضلاع میں اوسطاً تا شدید بارش ہو رہی۔ دوپہر سے شام 7 بجے تک حیدرآباد کے کئی علاقوں میں شدید سے شدید ترین بارش ریکارڈ کی گئی تھی جس کی وجہ سے شہر کے کئی مقامات پانی میں ڈوب گئے تھے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ بھر میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بارش کے دوران گھنٹے میں 40 کلومیٹر رفتار سے ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش برسنے کے بھی امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے عوام سے اپیل کی کہ وہ موسم کی صورتحال پر نظر رکھیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ریاستی سڑکوں اور عمارتوں کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ جن ارکان اسمبلی نے اجلاس میں شرکت کی ان میں سریش ٹکر، گڈم ومشی کرشنا، چملا، کرن کمار ریڈی، رگھورامی ریڈی اور حکومت کے خصوصی نمائندے جتیندر ریڈی شامل تھے۔ وزیر نے تلنگانہ میں قومی شاہراہوں کے پروجیکٹس پر اہم بات چیت کی، کئی درخواستیں دی۔ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر LB نگر سے حیات نگر تک تعمیر کی جا رہی ڈبل ڈیکر کوریڈور سڑک کے لیے مرکزی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ حیدرآباد اور امراوتی کے درمیان گرین فیلڈ ہائی وے کی تعمیر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
रियासत तेलंगाना में तालीम, रोजगार और सियासत की शोबों में बीसी के लिए रिजर्वेशन में 42% इजाफा। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की कौमी सदर जजोला श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि अगरचे रियासती हुकूमत ने असेंबली में एक बिल पेश किया और मुझसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर करके मरकजी हुकूमत को भेजे 3.5 माह हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में इस बिल के बारे में अभी तक शोर मचाया जा रहा और मरकज ने अब तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। दिल्ली के तेलंगाना भवन में मुनक्कदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीसी कास्ट एसोसिएशन जेएसी की चेयरमैन कोंडा राम गणेश चारी और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती उत्सवलम कमेटी के चेयरमैन चिन्ना श्री सैलम यादव ने मीडिया से बात की। इस मौके पर जजोला श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीसी की आबादी 60% होने के बावजूद उसने उसे 42% तक महदूद करने और बीसी रिजर्वेशन में इजाफा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मरकजी हुकूमत शंख के दिन पर बहरे की तरह काम कर रही और बीसी रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसे नवी शख में शामिल नहीं किया जा रहा। పంపించడం జరిగింది ఏప్రిల్ 2వ తేదీన ఇలా రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఇలా ఢిల్లీకి పంపించడం జరిగింది. దాదాపు 3 నెలల 15 రోజులైంది ఆ బిల్లు వచ్చి, కానీ ఆ బిల్లుకు మోక్షం లేదు. ఆ బిల్లు ఎక్కడ పోయిందో కూడా తెలియదు. అందుకోసం ఇలా కులగణనతో పాటు జనగణనతో పాటు కులగణన చేయాలి. ఆ తర్వాత 42% रियासती आईटी सनत और जिले के इंचार्ज वजीर डोडेला श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से हर खानदान को औसतन 1200 रुपए माहाना का चावल राशन कार्ड के जरिए फराहम करेगी। वजीर ने मंगल को मल्लापुर बालापुर मंडल महेश्वरम हलके के YAR गार्डन में मुनक्कदा नए राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की और मेहमान खुसूसी के तौर पर इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा है कि हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से रियासत पर हुक्मरानी कर रही और इसी के हिस्से के तौर पर मुस्तहिक गरीबों को राशन कार्ड जारी करने के मकसद से राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे। हालांकि रियासत 61 करोड़ 15 लाख रुपए माहाना खर्च कर रही, लेकिन गरीबों को फराहम करने के इरादे से बड़े पैमाने पर राशन कार्ड तकसीम किए जा रहे। संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने कहा है कि आंगनवाड़ी मराकज को बच्चों के पहले स्कूलों में तब्दील किया जाना चाहिए। जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने पोतीरेड्डीपल्ली गांव में आंगनवाड़ी मरकज का अचानक दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने आंगनवाड़ी सेंटर में चलाए जा रहे प्री स्कूल टीचिंग तरीक़ेकार का बराह रास्त मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अमले को मशवरा दिया कि वो वालिदैन को तालीम दें कि वो अपने तमाम बच्चों को पूरी तरह से प्री प्राइमरी तालीम के लिए आंगनवाड़ी मराकज में दाखिल कराएं। उन्होंने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं कि कोई भी अपने बच्चों को प्री प्राइमरी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिल न करे और उनका दाखिला आंगनवाड़ी मराकज में करे। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो इस बात से आगाह रहें कि उनके बच्चों को आंगनवाड़ी मराकज में मियारी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना और बेहतर प्री प्राइमरी तालीम मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी सीनियर कबायली रहनुमा और साबिक वज़ीर आला शेबू सूरियन की मैयत रांची लाई गई, जहां उनके आखिरी दीदार के लिए अवाम का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। उनका जस्द खाकी मोरहा आबादी इलाके में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर रखा गया, जहां सुबह से ही अकीदतमंद सियासी कारकुन, कबायली नुमाइंदे और आम लोग बड़ी तादाद में खराज अकीदत पेश करने पहुंचे। शेबू सूरियन की आखिरी रसूमात दोपहर 2 बजे उनके आबाई गाँव नेमरा जिले रामगढ़ में अदा की गई। मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ उनकी चिता को अग्नि दी गई। निमरा में इंतजामिया ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए, जबकि मुकामी अफराद सुबह से ही आखिरी विदा के मुंतजर थे। बिहार में नीतीश कुमार की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत ने रियासती असातिज़ा की भर्ती में 2 मिसाइल पॉलिसी नाफिज करने का फैसला किया, जिस पर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ये उन्हीं की पॉलिसियों की नकल है जिनका वो पहले ही ऐलान कर चुके थे। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 मिसाइल पॉलिसी नाफिज करेंगे। हुकूमत के पास ना कोई विजन है, ना अपना कोई मंसूबा, इसीलिए वही सब कुछ कर रही जो हम पहले कह चुके हैं। अब आगे चलकर वो हमारी माँ बहन योजना को भी कॉपी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 मिसाइल का मामला पिछले 20 बरसों से उठ रहा, लेकिन हुकूमत ने अब इस पर कदम उठाया है। तेजस्वी के मुताबिक रियासत के नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2 मिसाइल पॉलिसी जरूरी और कई रियासतों में पहले ही ये लागू है। ताहम अब ये देखना होगा कि बिहार हुकूमत इस पर अमल दरामद कैसे करती है। तेजस्वी ने तंज़े अंदाज में कहा, अब तो साफ हो गया है कि हुकूमत वही करती है जो हम कहते हैं, हम बोलते हैं वो करते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के बाद अब मगरबी बंगाल में भी खसूसी गहरी नजरसानी का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम इंतखाबी पेशरफ्त के तहत रियासत के चीफ सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता खत भेजा गया है, जिसमें उन्हें फौरी तौर पर SIR की तैयारी और अमल दरामद शुरू करने की हिदायत दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। ताहम सियासी हलकों पर इस पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा, खास तौर पर इसलिए कि बिहार में इस अमल के दौरान वोटर लिस्ट से तकरीबन 65 लाख नाम हज़फ किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हज़फ किए गए नामों में अक्सरियत उन अफराद की है जो अब दुनिया में नहीं रहे, या ऐसे वोटर्स की जो मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरे रियासत में मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे वोटर भी हैं जिनके नाम एक से ज्यादा हलकों में दर्ज थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने का दर्दनाक वाकया पेश आया, जिसने हर तरफ तबाही का मंजर पैदा कर दिया। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों के मलबे में दबने की इत्तला सामने आ रही, जबकि 60 लोगों के लापता होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा। इस वाकये में अब तक कम से कम 4 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। बादल फटने की खौफनाक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए भी सुनाई दे रहे। बताया जा रहा है कि बादल फटने से खेरगाड़ में आबी सतह बढ़ गई और कस्बा धराली खेरगाड़ में मलबा भी तेजी से बहता चला गया। इससे कस्बे के कई घरों को नुकसान पहुंचा। मौसूला इत्तला के मुताबिक सैलाब का पानी कई होटलों में घुस गया। सैलाब के पानी के साथ मलबा भी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि आबी सतह बढ़ने से धराली मार्केट में भी शदीद नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने का दर्दनाक वाकया मिलने के बाद उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस वाक़े पर गम व अंधवा का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, धराली उत्तरकाशी इलाके में बादल फटने से हुए शदीद नुकसान की खबर इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदा है। उन्होंने मजीद बताया कि राहत व बचाव कारी के कामों के लिए SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका टीमें जंगी सतह पर मसरूफ हैं। इस सिलसिले में लगातार सीनियर अफसरान से राब्ते में हूँ और हालात की गहरी निगरानी की जा रही। ईश्वर से भी सभी की बेहतरी के लिए दुआ करता हूँ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।